Good morning, students. Today we are going to learn oscillation from 12th standard. So, in your 12th standard, you are having chapter number 5, that is oscillation. Let us begin with oscillation now. Okay. Oscillation chapter number 5 in 12th standard, Maharashtra State Board. So before going to oscillation, okay, we will define a term called as periodic motion. Let us define what is periodic motion, okay. Periodic motion. To go for oscillation, we have to see what is periodic motion. What is periodic motion? We know that any motion which repeats itself in equal interval of time is called as periodic motion. Any motion which repeats itself in equal interval of time is called as periodic motion. For example, okay, what example we can take? Oscillation of pendulum. You know what is pendulum basically? It's oscillate. It starts oscillating. Oscillation of pendulum. Else what we are having is hands of the watch. We are having hands of the watch. We are having 3 hands of the watch. They are performing periodic motion. Vibration of tuning fork we are having. Vibration of tuning fork. You know what is tuning fork basically? A stem and prongs. That is tuning fork. Many such motions are performing periodic motion. So many such motion which is that they are performing periodic motions. Okay. So what is periodic motion? We can just define what is periodic motion. Any motion which repeats itself in equal interval of time. There are many examples in periodic motion. Okay, so as I told you, vibration of tuning fork, oscillation of the pendulum, hands of the watch, they are all periodic motion. For example, now let us talk about hands of the watch. We are having 3 hands of the watch. We are having a hour hand, we are having a minute hand, we are having a second hand. Can you tell me what is the time period of second hands? Time period of second hand is 1 minute. How? Because second hands, it starts moving, it completes 1 revolution. So time period is 1 minute. 1 minute is 60 seconds. If I tell you the time period of minute hand, what is the time period of minute hand? We are having 1 hour. 1 hour is 60 minutes. Time period of revolution, time period of the rotation of the earth. What is time period of rotation of the earth? 24 hours. So it is repeating its movement in equal interval of time. So all such movements are basically periodic motion. For example, let me take a pendulum now, a simple pendulum. What you can do is you can take a string, you can tie a rubber under it. Up string ko 25, you take it as 25 centimeter. The length of the string is 25 centimeter. Okay, and give a very small amplitude. What is going to happen? Length of the string is 25 centimeter. Just give a very small amplitude. Release it. Okay, it will start oscillating. Can you tell me if it starts from here, length of the string is 25 centimeter, it will go to other side, again coming back. Okay, how much time period? What is the time period of the pendulum? Can you determine it? Okay, we can determine because we are having a formula for that. We are having a formula for time period. Time period of the pendulum is given by T is equal to 2 pi root of L upon small g. We know small g is acceleration due to gravity. The nature is giving you acceleration due to gravity. The length is 25 centimeter. You keep all that. Length is 25 centimeter. 25 centimeter. G is 980 centimeter per second square. Putting the value of 2 pi, you will get time period as 1 second. Because it is periodic motion. So time period is 1 second.
in 1 second it is going to come back. For example, we are taking length of the string is 25 centimeter. Okay, g is 980 centimeter per second square, and just release from one point. 1 second, 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 stop. What we have seen is here the frequency remains constant, but amplitude goes on decreasing. Okay, so that is also an periodic motion, but here amplitude goes on decreasing. We'll learn about that, what happens when the amplitude goes on decreasing, what type of periodic motion it is. Okay, so what we are having is periodic motion. We have defined what is periodic motion. Many examples we are having in the periodic motion. Let us go to the another type of motion we are having. Now, okay students, now we are having a next one. We'll just define a term called as oscillatory motion. Oscillatory motion. Now, what is oscillatory motion? Periodic motion we have seen. What is oscillatory motion? Okay, motion of a particle moving to and fro or vibrating along the same path. Moving along the same path is called as an oscillatory motion. What are the example of oscillatory motion? What are the example we can take of the oscillatory motion? Oscillation of the pendulum we have seen. Okay, oscillation of the pendulum, vibration of the tuning fork. Okay, stems and prongs, vibration of tuning fork, and many such example of the oscillatory motion we can take. Okay, so what is basically an oscillatory motion? It is the motion of the particle, which executes to and fro along the same path, which executes to and fro or back and forth along same path. Example is this specified. We can put the example of oscillation of pendulum. We can vibration of tuning fork. We can take the example. Okay, there are many such examples of the oscillatory motion. Vibration of the air column inside a pipe. Okay, vibration of the strings. That is the strings of the guitar, sitar. So vibration of strings. They are repeating. The particles are repeating its motion. That is oscillatory motion. So hence, what we can tell? Can you tell me all periodic motions are oscillatory? All periodic motions are oscillatory? All periodic motions are oscillatory? No, all periodic motions are not oscillatory. All periodic motions are not oscillatory because we are knowing revolution of the earth or rotation of the earth. They are performing circular motion there. So all periodic motions are not oscillatory. But one thing we should realize that all oscillatory motions are periodic. It means all oscillatory motions, the examples of oscillatory motions, they are all periodic motions. Are you getting it? Yes students, we have seen what is periodic motions and oscillatory motions. Now in oscillatory motion, basically, in this chapter, oscillatory motion, we are having two types, suppose I am telling you. One is linear simple harmonic motion. And suppose we are having one more, that is angular simple harmonic motion. ये जो simple harmonic motion क्या है? Simple harmonic motion is a part of an oscillatory motion. Simple harmonic motions are the part of the oscillatory motion. And then we are having two types of simple harmonic motion. One is linear simple harmonic motion and one is angular simple harmonic motion. Okay. If I talk to you about simple harmonic motion, अगर मैं simple harmonic motion के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसा नाम है simple harmonic motion. Again, periodic motion of a particle moving along the same path is a simple. Harmonic, which is repeating its movements in equal interval of time, that is called harmonic. So that is why it is called simple harmonic motion.
एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पेंडुलम, ओके, सिंपल पेंडुलम. So motion of a pendulum repeats itself in equal interval of time. We can take it as linear simple harmonic motion. Vibration of tuning fork, linear simple harmonic motion. So बहुत सारा एग्जाम्पल है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का. एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है, एक टाइप का इवेंट जो हो रहा है नेचर में, जो इवेंट हो रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन दे परफॉर्मिंग. कैन यू टेल मी सेम टाइप ऑफ वी आर हैविंग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो जो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है इस दुनिया में, ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट, ऐसा टाइप का इवेंट होता है. एग्जाम्पल क्या है सोचो. एग्जाम्पल ये है, वी कैन टेक मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम एक मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर लेते हैं, नीडल को सस्पेंड कर देते हैं, ओके, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. इट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. Simple pendulum is an event which is an example of linear simple harmonic motion. So simple means along the same path. Okay, harmonic means which is repeating. Okay, which is continuously repeating its motion. So that is why it is called simple harmonic motion. मैंने आपको बताया pendulum वो अपना along the same path है और अपना motion को repeat करता है. Same thing we are having angular simple harmonic motion. It is a curved path. It is a curved path. Magnet vibrating in magnetic field. वो curved path है लेकिन वो अपना मूवमेंट्स को रिपीट कर रहा है और सेम पाथ में रखा है, सेम पाथ में वो वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है. बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट वी विल गो फर्दर फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाउ व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वी आर हैविंग काइनेमेटिकल इक्वेशन. जो भी पार्टिकल सीधा जा रहा है, सो उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस एटी है, हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, और हमारे पास डिस्टेंस का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. ये सब इक्वेशंस है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए. पार्टिकल यहाँ पे है तो थोड़ा देर के बाद कहाँ पे जाएगा, हम ये सब काइनेमेटिकल इक्वेशंस का फॉर्मूला यूज करते हैं. सेम थिंग हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन था जो 11th स्टैंडर्ड में था. अगर पार्टिकल अगर 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल परफॉर्म कर रहा है, लाइक वी आर हैविंग ए फुटबॉल इज किक और ए बॉल इज थ्रोन. ओके, सो वी आर हैविंग प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन था, जो पैराबोलिक पाथ वाला जो इक्वेशन था आपका. Okay, so that equation also you realize. No, but this is again in this chapter we are going to learn about oscillatory motion. इसका भी कुछ अपना इक्वेशन होगा. हम बिना देख के बता सकते हैं कि मेरा पार्टिकल किधर है. पार्टिकल फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज, अगर पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, कंटिन्यूअसली ऑसिलेटिंग, मुझे देखना है कि ये गिवन टाइम में, ये समय में 5 साल या 10 साल के बाद ये पार्टिकल किधर रहेगा, पेंडुलम कहाँ पे रहेगा, वो जो ऑसिलेट हो रहा है, जो बॉब ऑसिलेट हो रहा है, बिना देख के बता सकता हूँ. मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास इसका इक्वेशंस है. इस चैप्टर में हम इसका इक्वेशंस निकालने वाले हैं. सो एक ऐसा इक्वेशंस है जो बिना देख के मैं बता सकता हूँ मेरा पेंडुलम किधर है. पेंडुलम पीछे रहेगा, मैं खाली 3 चीज देख सकता हूँ पेंडुलम का. फॉर एग्जांपल मैं पेंडुलम का अगर मैं देख लूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है क्या राइट से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या, लेफ्ट या राइट. एक तो पहली बात उसका स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, देन उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड. अगर कोई चीज पीरियडिक मोशन है, ओनली देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट दिस फ्यूचर. पीरियडिक मोशन, इसलिए ये पीरियडिक मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन भी वाला नहीं. अगर ये पीरियडिक रहेगा तो हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हाँ मुझे पता है क्या ये 1 सेकंड में वापस से अपने जगह में आने वाला है. इफ आई एम नोइंग दैट, इफ आई एम नोइंग द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्या राइट से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझे पता है तो 3 चीज पता होना जरूरी है. एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक तो उसका फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑल्सो टाइम पीरियड, एंड उसका फेस. फेस मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या लेफ्ट से, क्या 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है, क्या 90 से स्टार्ट हो रहा है, क्या 180 से स्टार्ट हो रहा है. तो 3 थिंग्स वी शुड नो. ओके, 3 थिंग्स. एंड स्टार्टिंग पॉइंट मींस द सेम थिंग. एंड वन थिंग इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, इतना क्या इतना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अगर ये मुझे सपोज 3 चीज पता है, अगर मुझे एम्पलीट्यूड पता है, मुझे इसका पीरियडिक, मुझे उसका टाइम पीरियड पता है, एंड सपोज वी आर नोइंग इट्स फेस, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ओके, स्टार्ट कर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90 से स्टार्ट हो रहा है, 180 से कहाँ से स्टार्ट. अगर ये 3 चीज पता है तो अगर आप पेंडुलम ले लो, अगर ऑसिलेट करो, बिना देख के मैं बता सकता हूँ पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है. पीछे जो मैं बिना देख के, मेरे पास इक्वेशंस है, मेरे पास लैपटॉप में इक्वेशन, बिना देख के मैं बता सकता हूँ कि पार्टिकल कहाँ पे है.
एक सेकंड में पार्टिकल किधर है, नेक्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल किधर है, कौन से पोजीशन में, मींस व्हाट बेसिकली वी आर डिटरमाइन इट्स पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, मैं उसका पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ तो मैं उसका वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, पार्टिकल पीरियडिकली ऑसिलेट हो रहा है, आई कैन फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट, आई कैन फाइंड इट्स वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका एनर्जीज कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी कितना है, we can find students. Okay, so that is why we are learning this chapter. Okay, so we are having an oscillatory motion, we are having two types of SHM, linear SHM I told you, okay, and angular SHM. Linear means along the straight line along the same path, example is like pendulum. Angular SHM is magnet vibrating in magnetic field, okay, along the same path but along curved path. Okay, okay students, so we will start with linear simple harmonic motion. This chapter we are having linear simple harmonic motion. Now linear simple harmonic motion, let us take an example. We are having a spring tied to a block. हम एक support लेंगे, we are having a support, fixed support suppose we are taking, और यहाँ पे हमारा spring है, the block is there, okay, suppose the block is at rest, the block is in relaxed position, ये पूरा relaxed position है, block जो है उसका जो mass है, block का mass is m, okay, it is at rest. Now this is an event, ये एक event हो रहा है, okay, one more position I will take, जहाँ पे मैं ब्लॉक को राइट हैंड साइड पुल करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा उसको, okay, and the third event will be the same event when the block is going to come near to this support. So ये मेरा जो पॉइंट है, जो पोजीशन बना रहा हूँ इसको यहाँ पे और इधर, ओके, having mass है, इवेंट इज सेम, तीनों क्या डिफरेंस है इसमें, नाउ इज spring which is attached to the rigid support and other end of the spring is attached to the block having mass m, which is in the relaxed position. How we will define linear SHM? Let us come to linear explanation of linear SHM. Let us, now this position is suppose the mean position, ये मेरा mean position, it is a mean position है, ये मेरा mean position है, अब आपका ब्लॉक mean position में है, okay, that is equilibrium position. Now let us, this is the mean position, now let us pull the block from this point, okay, let us pull the block from this point to and go on pulling it till the force becomes maximum. Force आपका maximum हो गया तो आपको रुकना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे force maximum हो गया. So at this point ये जो extreme position है, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गया, आपने फोर्स अप्लाई किया एक्सट्रीम पोजीशन में, सो फोर्स इज बिकमिंग मैक्सिमम. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू जस्ट रिलीज इट एट दिस पॉइंट, जैसा आपने ब्लॉक को रिलीज कर दिया क्या हो जाएगा, इट विल कम बैक, इट विल ट्राई टू कम बैक टू द मीन पोजीशन, वो इधर तक आके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो गया मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी जीरो है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग अगर मेजर करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो गया, आपने उसको पुल किया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे रुक गया, एंड एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम, मतलब वो फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेट होने वाला है, चेंज करेगा फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होने वाला है. ओके, सो जब मैं रिलीज करता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इट इज गोइंग टू कम बैक टू द मीन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द फोर्स विल go on
The force is acting here, force is maximum. So what is going to happen? Force goes on decreasing, acceleration goes on decreasing, velocity goes on increasing. ये पॉइंट में इधर आके मीन पोजीशन में जब ये आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ओके, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये जो ब्लॉक है ये मीन पोजीशन में रुकेगा नहीं. वेयर इट इज गोइंग टू गो? इट इज गोइंग टू गो टू द लेफ्ट हैंड साइड. वो लेफ्ट में चले जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन में चले जाएगा. सो द ब्लॉक विच इज राइट फ्रॉम हियर, जब ये रिलीज किया, इट इज गोइंग टू कम हियर, इट इज नॉट गोइंग टू stop here, it is going to continue, okay, due to inertia, and it is going to, and what is going to happen here? The spring was extended, यहाँ पे stretch किया था मैंने spring. तो जब ये block इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? Compression form होगा. So there is a compression in the spring, and then what is going to happen? Okay, again what is going to happen? The velocity of the block is going to become zero. यहाँ पे रुक जाएगा. Again force यहाँ पे maximum होने वाला है. So ये again extreme position हो गया मेरा. It is an extreme position. So we are having two extreme position and we are having a mean position which is at the center. Okay, so what I have done here, I have pulled the block. The force becomes maximum. I have released it. What is happening? The block comes back to the mean position. At the mean position, force is zero, acceleration is zero, but velocity is maximum. Displacement is zero. That is from mean position we calculate displacement. Okay, and it goes to the left hand side. Left hand side, the spring gets compressed, and finally the block stops here. The velocity is zero. Acceleration becomes maximum and velocity and force becomes maximum. What is going to happen? Again the compressed spring, it is going to push the block in the right hand side. So again what is going to happen? The velocity goes on, velocity is zero, velocity goes on increasing, increasing, increasing again at the mean position. ये आपका अगर suppose आपने mean position ले लिया है, again at the mean position the velocity becomes maximum here, and due to inertia it is going to move. So again velocity becomes maximum, then velocity goes on decreasing, 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 again it is going to stop. So what basically is happening? The block is going to move continuously along the same path. It is going to move continuously along the same path, periodic motion. Okay, that is harmonic motion. Harmonic motion it is going to perform. It is repeating in equal interval of time and along the same path. So it is basically linear simple harmonic motion. Now how we will define that? So what is acting here between the extreme position and the mean position? What is happening here? It is how we can define linear simple harmonic motion. So we are defining here by the equation. It is F proportional to X. What is the meaning of F proportional to X? So linear simple harmonic motion is defined as, it is a force acting on the particle. It is a force acting on the particle which is directly proportional to the displacement of the particle. जितना ज़्यादा displacement होएगा from the mean position, उतना ज़्यादा force act करेगा. So force acting on the particle is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position. Displacement is on the right hand side, force is on the left hand side. But force and displacement are opposite in direction. It means if we'll write F which is equal to minus K is constant minus Kx. So this is the definition of linear simple harmonic motion. I will write the definition. But this is an event, this is an experiment. And from this experiment we have taken a judgment that force acting on the particle is directly proportional to the displacement of the particle. The displacement is on the right hand side, force is there. Displacement goes on increasing, force goes on increasing, but force is opposite in direction. Force and displacement are in opposite direction. So displacement is in the right hand side, force is on the left hand side. Displacement goes on increasing, force goes on increasing, displacement increasing, force is maximum, displacement is maximum. Force is maximum. Now it is going to come back to the mean position, force goes on decreasing, 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 force becomes zero. Okay, and on the left hand side again the force goes on increasing, 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 and again here it becomes maximum. So extreme position force आपका maximum है, आपका acceleration maximum है. Okay. Here center में क्या हो रहा है? Velocity, your velocity is how much? Your velocity is maximum, but when you are starting the event, when it is going to come here, velocity here it is zero, but here again it is coming back, velocity becomes maximum. So what is happening? Continuously the displacement, velocity, acceleration there goes on changing, because this is harmonic motions. It is linear simple harmonic motion. So now from this event we can define the term what is linear simple harmonic motion. Let us define linear simple harmonic motion.
So students, now linear SHM, linear simple harmonic motion. Let us define it. Okay. It is periodic motion. It is periodic motion. Periodic motion. It is periodic motion in which force acting on the particle, force acting on the particle, force acting on the particle is directly proportional to, is directly proportional to displacement of the particle, displacement of particle from its mean position, from its mean position, from its mean position. And force is always directed towards mean position. ये इसका definition. Hence F is proportional to X. F is equal to minus Kx, where negative sign indicates that force and displacement are opposite in direction. K is force constant, और in case of event, in case of spring जो move हो रहा था, oscillate हो रहा था, spring constant बोल सकते हैं. F equal to minus Kx. Here F का यूनिट है न्यूटन है, X डिस्प्लेसमेंट मीटर है. सो फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट होएगा वह K is force constant. In ideal case, K is F by M and unit will be Newton per meter. SI force constant. So basic आपका जो इक्वेशन जो है ये लीनियर एसिड का इक्वेशन है. जैसे हमारा न्यूटन का इक्वेशन, न्यूटन सर का इक्वेशन है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अप्लाई मास इनटू. तो यहाँ पे जो फोर्स है एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, ओके, तो F इक्वल टू माइनस kx है. अगेन हियर आई विल जस्ट टेल यू, एक बात बता रहा हूँ आपको. क्या ये सपोज मैंने एक डायग्राम बना दिया एक आपके लिए. ये मेरा मीन पोजीशन है. सपोज आई एम हैविंग ए मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन मेरा O हो गया. ये N और M मेरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया. ये ऑसिलेटरी मोशन का एक इवेंट है. ओके, और आपका ये एंड पॉइंट्स है. यहाँ पे मैंने दिया माइनस ए एम्पलीट्यूड और यहाँ पे दिया आपका प्लस ए एम्पलीट्यूड. और पार्टिकल इधर सपोज पार्टिकल इज एट पॉइंट P, पार्टिकल मैंने पॉइंट P में डाल दिया. ओके, सो ये मीन पोजीशन हो गया O, और N और M आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये तो हो गया आपका लीनियर एसिड का डेफिनेशन. Okay, it is a periodic motion in which force acting on the particle is directly proportional to the displacement of particle from its mean position, and force is always directed towards the mean position. Just see the diagram. Suppose मैं अगर बोलूँगा पेंडुलम में ऑसिलेट हो रहा है along the straight line, along the same path. Okay, small amplitude लेते हैं. Okay, यहाँ पे अगर suppose एक पेंडुलम बॉब ऑफ पेंडुलम इज हियर, इधर अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया ये पॉइंट में, ये क्या होगा? ऑसिलेट करेगा. यू कैन जस्ट सी इन द डायग्राम. आप देखो क्या हो रहा है. जब मैं पुल करके जो स्प्रिंग के केस में अगर पुल कर रहा हूँ, इन केस ऑफ इवेंट स्प्रिंग को अगर पुल कर रहा हूँ, ओके, ब्लॉक इज पुल्ड विद हेल्प ऑफ द स्प्रिंग एट दिस. यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया मैंने. यहाँ पे क्या मैक्सिमम हो रहा है? फोर्स बिकम्स मैक्सिमम बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. इफ डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एट दिस पॉइंट हियर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, सो फोर्स इज मैक्सिमम. Okay, what is going to happen? Again, the particle due to force is maximum, it will try to bring the body back to the mean position. ये अपने बॉडी को वापस स्प्रिंग के केस में वो वापस से अपना बॉडी को मीन पोजीशन में लेके आने के लिए देखें. तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पे जीरो था, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एट मीन पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम. Acceleration is zero, force is zero, but due to inertia, the body is going to move in the left hand side. So here what is going to happen is velocity goes on decreasing, acceleration goes on increasing, force goes on increasing. Again at this position, force becomes maximum.
So again what is going to happen, the body will try to come back to the mean position, जैसा अपना definition है. So वापस से इधर क्या होगा, body यहाँ से आने के लिए दिखेगा in case of pendulum या spring या block tied to the spring. So again what is going to happen, force goes on increasing and force यहाँ पे maximum है, force goes on decreasing, force again zero होगा, velocity maximum हो जाएगा. So what exactly is happening is, it is an oscillatory motion. It is performing oscillatory motion. It is performing linear simple harmonic motion. Linear means along a straight line. It is repeating simple. It is along a straight line. It is harmonic, repeating its motion. Okay, so linear simple harmonic motion. So again I will tell you. Okay, this is an equation of linear simple harmonic. जैसा अपना equation है straight line के लिए force का है F equal m है, वैसा ये linear simple जो इस दुनिया में जो इवेंट हो रहा है, जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, उनके लिए एक इक्वेशन है. तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है F equal m है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका जो इक्वेशन है हमारे पास वो F equal minus kx है. इट इज ओनली फॉर ऑसिलेटरी मोशन. ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है ये F equal minus kx. पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट आपका राइट में आ रहा है, तो फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट. इट इज फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. एक्ट हो रहा है, जा नहीं रहे, डिस्प्लेस पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, लेकिन फोर्स इस तरफ ही है. When but particle when comes here, when displacement is maximum, force is maximum, it will try to bring the body back to the mean position. यहाँ पे inertia की वजह से body इधर जाएगा, again ये यहाँ पे force maximum हो जाएगा, again it will try to bring the body in the mean position. Okay, and then it will continue its oscillatory motion, periodically, continuously oscillate होता रहेगा. मतलब ये डैम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेंडुलम को मैंने इफ सपोज आई एम कीपिंग द पेंडुलम इनसाइड द वैक्यूम, एक वैक्यूम चेंबर में रखा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो पेंडुलम कभी रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा, ऑसिलेट होते जाएगा, कंटिन्यूसली ऑसिलेट होते जाएगा. मतलब वो हो गया लीनियर सिस्टम का एग्जांपल हो गया. और वो डैम्प्ड अनडैम्प्ड मोशन है. अनडैम्प्ड मतलब रुकेगा नहीं एयर रेजिस्टेंस के साथ, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली ऐसा ऑसिलेट करेगा. अब बिना देख के आप बता सकते हो, आपके इक्वेशन हम लोग बनाने वाले, बिना देख के आप बता सकते हो कि अगर पेंडुलम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेस बोलता है फेस, और उसका एम्पलीट्यूड पता है कि यहाँ कितना एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है. दो चीज़, और पीरियडिक मोशन, उसका टाइम पीरियड अगर पता चला, जैसे कि मुझे मालूम है क्या रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, मुझे पता है हर एक साल में अपनी जगह में आ जाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, वैसे पीरियडिक मोशन हम कैलेंडर्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं. पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, वो ऑसिलेट हो रहा है, बिना देख के मैं बता सकता हूँ क्या पार्टिकल किधर रहेगा, कौन सा पोजीशन में रहेगा. वी आर गोइंग टू फाइंड, हम इक्वेशंस निकालने वाले. ओके, सो ये बेसिक इक्वेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, फोर्स F इक्वल टू माइनस kx. आर यू गेटिंग इट? ओके ओके, सो व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट्स इज डेफिनेशन. देखो याद करो, पहला पीरियडिक मोशन किया, फिर ऑसिलेटरी मोशन है. हमने बोला क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक, बट ऑल पीरियडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी. देन हमने ऑसिलेटरी मोशंस में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बात की. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम बात करते हैं, हमने एक इवेंट सेट किया, हमने एक ब्लॉक लिया विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव डिफाइंड ए डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गॉट ए फॉर्मूला of linear simple harmonic motion equation F equal to minus kx. Okay, so F proportional to the force is directly proportional to displacement. Okay, अब now we are going to obtain जो important exams में आया है, जो questions आया आपका. Okay, obtain differential equation, मतलब एक नया equation हम obtain करने वाले. differential equation मतलब एक टाइप का बोल सकता है वो गुरु equation है, मतलब एक टाइप का हार्मोनिक मोशंस के लिए, ऑसिलेटरी मोशंस के लिए हम एक इक्वेशन सेट करने वाले हैं, उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, so here how to obtain that? So obtain, we're having differential equation. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो मोशन हो रहा है, इवेंट जो हो रहा है, हम जो पढ़ रहे चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक सो डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल रहे हैं लीनियर हार्मोनिक मोशन के लिए, लीनियर एसएचएम के लिए, और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लेट अस ऑब्टेन दिस. ओके, हाउ टू ऑब्टेन दिस? According to definition, by definition of linear SHM,
ओके नाउ आई विल ड्रॉ डायग्राम फॉर यू. फॉर एग्जांपल ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा लीनियर सिस्टम हो रहा है. ये मीन पोजीशन है. आई एम हैविंग योर एक्सट्रीम पोजीशन n and m. पार्टिकल विल ऑसिलेट कंटिन्यूसली. मैक्सिमम इस तरफ का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड. माइनस प्लस है एंड माइनस है. पार्टिकल मेरे इधर है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x है फ्रॉम द मीन पोजीशन. और हमेशा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा मैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. यहाँ पे भी फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है. ओके, तो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिस्टम. व्हाट वी नो, f इक्वल टू माइनस के. ये मुझे पता है. माइनस इक्वेशन नंबर 1. डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स. इफ आई विल कंपेयर दिस विथ न्यूटन्स. न्यूटन्स का फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें कंपैरिजन करना है, हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एंड बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ. व्हाट इज माय फोर्स? F इक्वल टू मेरा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ये पहले से पता है. ये हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए कंपेयर करेंगे. अब इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव. सो व्हाट इज माय m? m इज मास. ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास m है और वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसका इक्वेशन हमने लिखा है F इक्वल टू माइनस के. न्यूटन्स लॉ के हिसाब से F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज dv by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में dv by dt. अगेन आपका क्या हो जाएगा, m मास हो गया. Okay, F equal to your d upon dt. Again, what is d upon dt? What is velocity in terms of velocity in terms of displacement? Velocity is what? Rate of change of displacement. मतलब v के जगह में क्या आएगा, dx upon dt आ गया. So what you will write here is finally you are going to write F which is equal to m और d के जगह में मैं लिख रहा हूँ d square x upon dt square. This is equation number 2. अब ये आपका F इक्वल टू माइनस एक्स इधर है. ओके, मेरा लीनियर सिस्टम का डेफिनेशन है और ये हमारा न्यूटन का है इन फॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव. F इक्वल टू m d स्क्वायर x. अब लेट अस कंपेयर दिस. If you are going to compare, when you are going to compare, therefore using 1 and 2, using 1 and 2, what is my m d square x अपॉन डी टी स्क्वायर, ma जिसे बोलते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स हो गया. माइनस के इंटू एक्स. मूव फर्दर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इधर आ गया और एक्स हो गया. ये एक्सेलरेशन ही है. डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम, एक्स इस तरफ गया, दैट इज इक्वल टू दिस इज नथिंग. ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया, मतलब ये मेरा गुरु इक्वेशन हो गया. एक टाइप का हेड. इससे मैं बहुत सारा इक्वेशंस निकालने वाला हूँ. दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस के लिए. बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इस दुनिया में. जो चीज सपोज कोई डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, डीके का n इक्वल टू n0 e रेशो माइनस लैम्बडा टी करके इक्वेशन होता है. जो सब्सटेंस डीके होता है उसका इक्वेशन अलग है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है. तो ये ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हमें बहुत सारे इक्वेशन मिलने वाले. लाइक आगे हम निकालने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसे पार्टिकल उसका एक फॉर्मूला निकलेंगे. वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समय के हिसाब से पार्टिकल किधर है, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है. ये सब फॉर्मूला, सब इक्वेशंस वी आर गोइंग टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इट इज द हेड ऑफ द हेड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस के लिए. ये वाला इक्वेशन हेड इक्वेशन. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? वी हैव सीन अगेन ऑसिलेटरी मोशन चैप्टर वी आर डूइंग, एंड ऑसिलेटरी मोशन में हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. ऑसिलेटरी मोशन में वी आर लर्निंग अगेन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वी आर लर्निंग एंगुलर सिंपल. वी आर लर्निंग बेसिकली दिस चैप्टर इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इवेंट में बता दिया था, एक्सपेरिमेंट नेचर जो देता है, बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ओके, लाइक स्प्रिंग ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग स्टार्ट ऑसिलेटिंग.
अनडैम्प्ड मोशन मतलब कंटिन्यूसली ऑसिलेट होता है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। पेंडुलम को हमने रख दिया वैक्यूम के अंदर और वो अगर हम ड्यू टू ग्रेविटी वो ऑसिलेट करता रहेगा, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा विदाउट लुकिंग पेंडुलम। अगर मुझे तीन चीज़ पता है, अगेन मैं बार बार फोकस कर, तीन चीज़ पता है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस बाजू लेफ्ट राइट कहाँ से स्टार्ट करेगा, और एम्पलीट्यूड कितना है, कितना एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करेगा, अगर मुझे एम्पलीट्यूड मान लीजिए कितना एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करेगा, ओके, और टाइम पीरियड, ये तीन चीज़ अगर पता है, टाइम पीरियड समय क्या टाइम पीरियड, अगर वो पता चलेगा, तीन चीज़ अगर पता चलेगा, बिना मेरे पास कुछ इक्वेशंस बनाने वाला हूँ जिससे बिना देख के पता सकता हूँ क्या पेंडुलम का एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पे पेंडुलम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना वेलोसिटी है हर जगह में, कितना एक्सेलरेशन है और कितना एनर्जी है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा। ओके, सो नाउ जहां तक हम रुके थे, लेट अस कंटिन्यू विद दैट। अगेन आई विल टेल यू लीनियर एसएचएम वी हैव डिफाइंड। लीनियर एसएचएम का जो इक्वेशन है हमारे पास f = -kx है, and then from linear equation we have obtained what differential equation last time we have obtained in the last derivation, differential equation, very important derivation. What is differential equation? d²x/dt² plus k/m(x) = 0। और k/m वहाँ पे बेसिकली हमें क्या है, व्हाट इज k/m, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपको। सी व्हाट वी आर हैविंग इज, फर्स्ट थिंग इज f = -kx, linear SHM। सेकेंड इज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² plus k/m x = 0। ओके, यार k/m मुझे बताना था आपको, therefore d²x/dt² plus ω²x = 0। मतलब मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके बता रहा आपको, ये ω² k/m की जगह में ω² ले लिया मैंने, where ω² is k/m और ω = √k/m। ओके, ओमेगा मतलब आपने 11 में क्या रहेगा, everywhere omega is coming, rotational dynamics also, omega is nothing, it is angular frequency। okay, angular frequency, omega is angular frequency मतलब एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है रिलेटेड विद टाइम पीरियड, एक टाइप का टाइम पीरियड है। ओमेगा = √k/m, k कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, या स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है। ओके, हम इसे हमें ये एक टाइप का कांस्टेंट है, कोई भी इवेंट हो रहा है उसका एक कांस्टेंट है। ओके, सो ओमेगा इज बेसिकली कांस्टेंट, और मतलब ये वैल्यू हमें पता चलना चाहिए, ये वैल्यू हमें पता रहे, बिकॉज पीरियडिक मोशन है, पीरियडिक मोशन के लिए ये कांस्टेंट है। सो हियर व्हाट वी आर टेकिंग इज इंस्टेड ऑफ k/m इट इज ω²। नाउ यू विल टेल मी सर ये ω² क्यों है, ये हमारा ओमेगा क्यों नहीं, ये हमें ओमेगा क्यों लिया, बिकॉज ω² = k/m यही इक्वल प्रूफ करता है। बाय डायमेंशन एनालिसिस हमने जो पढ़ा है 11th मेजरमेंट चैप्टर में, तो डायमेंशन एनालिसिस में प्रूफ कर सकता हो क्या जो ओमेगा है उसका जो यूनिट है, उसका जो डायमेंशन है, और जो k/m है, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन ही इक्वल मैच करेगा। सो आप बोल सकते हो कि आपका जो k/m है वो बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी देगा, तो फ्रीक्वेंसी तो पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता रहेगा तो हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका पीरियडिक मोशन है, टाइम पीरियड पता है तो वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो हियर वी आर टेकिंग k/m which is equal to we have taken a constant called as ω²। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव कर सकते हो कि ओमेगा एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशन, और k फोर्स कांस्टेंट k/m, दिस इज कांस्टेंट। वन मोर थिंग, इफ सपोज इफ यू वांट टू प्रूव आल्सो वी कैन प्रूव इन अदर मैनर आल्सो। हम इसको कुछ रख सकते हैं, सपोज इफ अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर पेंडुलम एक केस ले लिया, सो ये पेंडुलम का देखो, ओमेगा = √k/, ये k क्या है मेरा, k is f/, what is k, because f = kx, f = मेरा क्या है, kx है। so what is my k is equal to f/x, so उसको f/x रख दिया, इधर m रख दिया, सपोज ऐसा जस्ट प्रूफ करना है आपको। ओके, सो हियर व्हाट इज f = मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन x हो गया मेरा, x मतलब x हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज mm कट हो गया, सो यू कैन आल्सो राइट इज ओमेगा इज नथिंग, एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट में a/x हो गया, ये मतलब एक्सेलरेशन x है। Suppose in case of pendulum अगर मैं ले लिया, if in case of pendulum, if I'm talking about in pendulum, see what happens, कुछ अलग ही कुछ मिल रहा है हमें। इन पेंडुलम में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ओमेगा हो गया रूट ऑफ एक्सेलरेशन, जो पेंडुलम का रहता है वो एक्सेलरेशन की ग्रेविटी की वजह से वो ऑसिलेट होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जीओ ले लिया,
और ये x की जगह में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, उसके x की जगह में लेंथ ले लिया, पेंडुलम का लेंथ ले लिया मैंने। सो ये भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम में मैंने कांस्टेंट रखा, तो आपको एग्जैक्टली ओमेगा इज व्हाट, बेसिकली इट इज 2π/t। बस हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा है, ओमेगा इज 2π/t, टाइम 2π टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ g/l, एंड अगेन वी आर गेटिंग टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला मिल गया, t इज इक्वल टू रूट ऑफ l/g। तो ये तो फॉर्मूला हमने पहले से हमें पता है, पीरियडिक मोशन पेंडुलम का ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√l/g। ये लेंथ आप 25 सेंटीमीटर रख दो, g 90 रख दो, आपको टाइम पीरियड एक्जैक्टली 1 सेकंड मिल जाएगा। मतलब ये इसका मतलब मुझे ये कहना है कि अगर t 2π√l/g मतलब ओमेगा इज रूट ऑफ g/l है, ये दोनों कांस्टेंट है। एंड हियर इन केस ऑफ पेंडुलम इट इज हैपनिंग, हियर इन केस ऑफ एनी टाइप का इवेंट, एनी टाइप ऑफ ऑसिलेटर, जनरल इक्वेशन में मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा इज रूट ऑफ g/l। या स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से, स्प्रिंग जो आपका ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग है, वो जो ऑसिलेटर है, तो वहां पे आप प्रूव कर सकते हैं कि ओमेगा इज रूट ऑफ k/m। इसीलिए ये हम k/m को ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। वी आर नॉट टेकिंग ओमेगा, वी आर टेकिंग ओमेगा स्क्वायर। बाय डायमेंशनल एनालिसिस आल्सो वी कैन। ओके।